Hello guys, this is Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video we are going to see heap data structure and binary heap, what is binary heap and binary heap applications and time complexity. Okay, so हमने heaps already heap sort में पढ़ ली थी, थोड़ी introduction ले लिया था, बट थोड़ा हम आज deep में पढ़ने वाले हैं heap data structure, देन बाइनरी हीप्स क्या होती हैं, देन बाइनरी हीप की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं डिफरेंट जगह पे, और फिर उसके बाद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी हम देखेंगे. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज न्यूटन स्कूल. So basically Newton School is an e-learning platform where they are providing you different services. Okay, and in e-learning platform, first thing they provide is placement training. So what they do is they will train you for 6 months by teaching front-end development, back-end development and different frameworks like React, Node and obviously HTML, CSS, JavaScript. And not only this, then after teaching you for 6 months, they will also get you placed in different companies, by which they have tie-up with almost 300 companies of India like ThoughtWorks, Unacademy, Dream11. So what they do is they will make you a full stack developer and then they will arrange you a referral so that you can go and get a job in these companies. Okay, so most amazing thing they have is pay after placement program. So you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies, and the minimum CTC which they try to provide you is of 5 lakh, so it is also a good thing. Okay, so if you want to know more about this pay after placement program, just go to newtonschool.co and check their pay after placement program. Now second initiative they have is Launchpad, under which they are providing you free courses for everything, like for every computer science tech. Okay, you just need to come to newtonschool.co under Launchpad initiative, just sign up for free and start learning by opting any courses. They have different courses for you for different frameworks, core subjects, programming languages and development and coding, everything. So you can just come, sign up and start learning for free. You can also solve quizzes there. You can also do coding in Newton School IDE itself, and after completion of any course you will also get certification or certified by Newton School. Most amazing thing they have these days is Newton School MS degree program. So if you are a working professional or if you want to do MS from abroad but you can't afford it since it is very costly, okay, or you don't have time to go there and complete your MS degree, okay, so for that Newton School has a online MS degree program in which they have a tie-up with MIA Digital University of Spain, and you can do your MS degree from your home via online mode. The degree which they will provide you is applicable in all over India and in abroad also. Okay, so you can do masters in computer science from your home. Okay, to know more about it you can just go to the link in description, that is bit.ly hitesh15, and you can just comment in comment section and I will tell you everything about this program. So you can just go to the link in description and check Newton School MS degree program. Last thing, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, where I am teaching C++ from basic to advanced and also data structures and algorithms, you can just go to this YouTube channel and subscribe this and bookmark this playlist. Okay, so now let's just start our today's video, that is heap data structure and everything about binary heaps and all. Okay, so maybe it is possible कि आपने heap data structure पहले से पढ़ रखा हो. ठीक है, इन हीप सॉर्ट जहाँ पे मैंने बाइनरी हीप्स आपको बताई थी होती क्या है. नाउ लेट्स जस्ट सी हीप डेटा स्ट्रक्चर. सो हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या तुम्हारा, एक स्पेशल ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक बाइनरी ट्रीज पढ़े थे और बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा, उसकी स्पेसिफिकेशन सब कुछ उसके बारे में पढ़ लिया. उसी तरह का एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर और होता है हीप डेटा स्ट्रक्चर. ओके, इन विच ए ट्री इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री मैंने तुम लोगों को बाइनरी ट्री में पढ़ाया था. क्या होता है, सिंपली सपोज यू हैव अ ट्री. ठीक है, तो उसके मान लो लेवल जो है वो के लेवल्स हैं. यू हैव के लेवल ट्री. ओके, तो अगर वो हीप है तो होगा क्या, उसमें के -1 लेवल्स तक सारे के सारे जितने भी नोड्स हैं उनके 2 चिल्ड्रंस होंगे, और जो लास्ट लेवल होगा उसमें जितने भी नोड्स होंगे वो लेफ्ट मोस्ट होंगे.
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं कंप्लीट बाइनरी ट्री तो वो होगा क्या, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो कि यहां तक तुम्हारे सारे के सारे नोड्स फुल है। ठीक है, और जो लास्ट लेवल है वहां पे देखो कि जितने भी नोड्स हैं 3 नोड्स वो सारे लेफ्ट मोस्ट है। ठीक है, तुम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने यहाँ पे ये नोड खाली कर दिया और अपना ये नोड यहाँ बना दिया, तो ये बाइंड हीप नहीं होगा। ओके, सो दिस इज इट, ये था तुम्हारा हीप डेटा स्ट्रक्चर। नाउ हीप डेटा स्ट्रक्चर में भी दो टाइप्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं यू कैन से, ठीक है, दैट इज मिन हीप एंड मैक्स हीप। मे बी तुम लोगों ने ये भी पढ़ रखा हो इन प्रायोरिटी क्यू, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, और मैंने एक ब्रीफ दिया था आपको। ठीक है, तो हीप्स भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज मिन हीप, ओके, यू कैन सी हेयर मिन हीप एंड मैक्स हीप। ठीक है, अब मिन हीप क्या होता है, मिन हीप में जो भी आपका रूट एलिमेंट होगा आपके हीप का, ठीक है, जो भी आपके हीप का रूट एलिमेंट होगा वो मिनिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, आपके पूरे ट्री से। तो देखो सारे के सारे एलिमेंट्स इस 10 से बड़े हैं एंड दिस इज अप्लीकेबल फॉर एवरी सब ट्री ऑल्सो। ठीक है, तो अगर मैं ये पूरे ट्री की बात कर रहा हूं तो इसमें जो मिनिमम एलिमेंट है वो 10 है जो कि मेरा रूट है। अगर मैं इस सब ट्री की बात करूं, अगर मैं खाली इस सब ट्री की बात करूं तो इसमें भी जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो मेरा रूट होगा और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ट्री रूट को छोड़ के वो इससे बड़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारी मिन हीप होती है। अगर इसी तरह मैक्स हीप की बात करें तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा मैक्स हीप में क्या होता है, जो भी हमारा रूट एलिमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। 100 यहाँ पे मैक्सिमम है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स छोटे हैं, यू कैन इजिली सी। ठीक है, अगर मैं सब ट्री की बात करूं तो 40 यहाँ पे मैक्सिमम है, दैट इज रूट एलिमेंट एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन रूट एलिमेंट्स। ठीक है, तो दो टाइप्स के हीप होते हैं आपके, दैट इज मिन हीप एंड मैक्स हीप। और हीप क्या होता है आपका, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, सो टिल नाउ एवरीथिंग इज फाइन। नाउ हम चलते हैं बाइनरी हीप्स जो हम मोस्टली पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके ही डेटा स्ट्रक्चर्स में और एल्गोरिदम्स में ज़्यादातर वो होती हैं। ठीक है, तो बाइनरी हीप भी आपका सेम थिंग ही होता है। अ बाइनरी हीप इज अ बाइनरी ट्री, इट इज अ कंप्लीट ट्री एंड अ बाइनरी हीप इज ईदर मैक्स हीप और मिन हीप। ठीक है, तो बाइनरी हीप में आपकी नॉर्मल हीप अगर देखोगे तो वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो मिन हीप हो, मैक्स हीप हो, या फिर अभी हीप में कन्वर्टेड ही ना हो। ठीक है, लेकिन जो बाइनरी हीप होगी, जो आपकी बाइनरी हीप होगी वो या तो मिन हीप होगी या मैक्स हीप होगी एंड एक कंप्लीट ट्री होगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया। कंप्लीट ट्री क्या होता है कि k-1 लेवल तक आपके सारा नोट्स फुल होंगे और जो लास्ट लेवल होगा उसमें जितने भी नोट्स होंगे वो लेफ्ट मोस्ट होंगे। ठीक है, और या तो वो मैक्स हीप होगी या मिन हीप होगी। मिन हीप और मैक्स हीप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, नाउ मोस्ट अमेजिंग थिंग इन बाइनरी हीप इज दैट फॉर यूजिंग बाइनरी हीप वी यूज एरे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें कोई भी स्ट्रक्चर का यूज करके, जैसे हमें बीएसटी में बनाना पड़ता था, बीएसटी में हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे, उसमें एक नोड का स्ट्रक्चर बनाते थे, फिर उसमें अपना लेफ्ट चाइल्ड को एक पॉइंटर देते थे, एक राइट चाइल्ड को, और एक डेटा वेरिएबल लेते थे। तो हमें बाइनरी हीप में ये सब कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंस बाइनरी हीप इज अ कंप्लीट ट्री, ठीक है, एक बाइनरी हीप जो है वो एक कंप्लीट ट्री है, दैट्स व्हाई वी कैन अरेंज बाइनरी हीप इन एन एरे डेटा स्ट्रक्चर। हम सिंपली एक एरे का यूज करके भी बाइनरी हीप को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे वो देख लेते हैं। तो सपोज यू हैव अ बाइनरी हीप, मैं एक बाइनरी हीप यहां पे बनाता हूं। ठीक है, ये एक बाइनरी हीप है ना, मैंने इन सबको नोड्स को नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब अगर मैं इस कंप्लीट बाइनरी हीप का एक एरे डेटा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन करूंगा फॉर यूजिंग बाइनरी हीप इन कोड, ठीक है, तो उसमें जो ए नॉट एलिमेंट होगा, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स जो होगा, वो रूट ऑफ बाइनरी हीप होगा। ठीक है, दैट विल बी 1 ऑलवेज। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखी है एरे रिप्रेजेंटेशन में, रूट एलिमेंट विल बी एरे नॉट ऑलवेज। ठीक है, एरे रिप्रेजेंटेशन में। नाउ अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के दोनों चाइल्ड्स चाहिए, सपोज मैं यहां पे हूं, ठीक है, और ये इंडेक्स आई है, और मुझे ये पता लगाना है कि ये जो नोड है, सपोज यहां पे नोड एन स्टोर्ड है,
इसके दोनों चाइल्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो चाइल्ड्स फॉर ith इंडेक्स होंगे 2i+1 एंड 2i+2 इन द सेम एरे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, अगर मैं किसी ith इंडेक्स में हूं और ऑब्वियसली उस ith इंडेक्स में कोई नोड स्टोर्ड होगा, ठीक है, तो उस ith इंडेक्स के दोनों नोड्स दोनों चिल्ड्रन नोड्स कौन से हो जाएंगे, 2i+1 इंडेक्स और 2i+2 इंडेक्स। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो सपोज ये मेरा 0th इंडेक्स है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं और बोलता भी जा रहा हूं, ठीक है, कि सपोज दिस इज माय 0th इंडेक्स, जहां पे जो मेरा 1 है वो स्टोर्ड है, ठीक है, 1 स्टोर्ड है। अब इसके चाइल्ड कहां पे स्टोर होंगे, तो 0 × 2+1 और 0 × 2+2 पे, तो ये कितना हो गया, दैट इज 1 एंड 2। तो 1 और 2 इंडेक्स पे इसके चाइल्ड स्टोर कर दो, दैट इज 2 और 3, ठीक है। ये लेफ्ट चाइल्ड यू कैन से एंड दिस इज योर राइट चाइल्ड, 2i+1 इज लेफ्ट चाइल्ड एंड 2i+2 इज राइट चाइल्ड, ठीक है। इतना पता चल गया। अब अगर तुम्हें यही चीज सिंपली फास्ट करनी है तो व्हाट यू कैन डू इज, तुम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करो अपने बाइनरी हीप का और सिंपली सारे के सारे नोड्स स्टोर करते जाओ। अब बताता हूं कैसे, ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो होगा क्या, सबसे पहले पहला लेवल देखा 1, सेकेंड लेवल में 2 और 3 तो 2 और 3, फोर्थ लेवल में, थर्ड लेवल में 4 5 6 7, तो सिंपली स्टोर कर दो 4 5 6 7, फिर 8 9 10, 8 9 10। नाउ यू कैन सिंपली चेक दिस प्रॉपर्टी, 2i+1 और 2i+2 वाली प्रॉपर्टी चेक करो सिंपली, ठीक है। मान लो मुझे इस नोड के लिए इसके चिल्ड्रंस निकालने थे, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने सबके इंडेक्स लिख लिए। इस नोड के लिए 4 के चिल्ड्रंस निकालो, इंडेक्स क्या है 3, ठीक है। इसके चिल्ड्रंस क्या हो जाएंगे, 2 × 3 + 1 दैट इज 7 एंड 2 × 3 + 2 दैट इज 8। तो 8 और 9 आई एम सेइंग 4 के चिल्ड्रंस हैं। यू कैन इजिली सी 4 के चिल्ड्रंस कौन कौन से, 8 और 9, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन इजिली सी कि 2i+1 और 2i+2 बाइनरी हीप में किसी भी ith नोड के लेफ्ट और राइट चिल्ड्रंस होते हैं, ओके ना। थर्ड थिंग इज कि फॉर एन एलिमेंट ai, a array of i-1/2 returns the parent node and this is understood obviously कि कोई भी एलिमेंट है तुम्हारा, ठीक है, दैट इज करंट एलिमेंट, अगर तुम्हारा i है, ठीक है, उसका चाइल्ड नोड क्या है 2i+1, ठीक है। और अगर i को तुमने चाइल्ड नोड ले लिया है तो इसका पेरेंट नोड क्या हो जाएगा, सिंपली i-1/2। तो फॉर ith चाइल्ड नोड i-1/2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेरेंट नोड, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड था। तो ये रही तुम्हारी बाइनरी हीप एंड उसका एरे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो कि अब इसकी हमें थर्ड चीज क्या पढ़नी है, एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी हीप। बहुत सारी एप्लीकेशंस हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज हीप इम्प्लीमेंटेड प्रायोरिटी क्यूज आर यूज्ड इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम्स लाइक प्राइम्स एंड डाइक्स्ट्रा। अभी ऑब्वियसली हमने ग्राफ्स पढ़े हैं लेकिन उसकी एल्गोरिथम्स नहीं पढ़ी हैं, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। प्राइम्स एल्गोरिथम जो होती है वो MST निकालने के लिए होती है और डाइक्स्ट्रा होती है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, ठीक है। तो ये दोनों एल्गोरिथम्स अभी हम इसी प्लेलिस्ट में फर्दर वीडियोस में देखने वाले हैं। तो इसमें सिंपली लिखा हुआ है, मैंने जब आपको प्रायोरिटी क्यू बताया था तो मैंने वहां पे बताया था कि प्रायोरिटी क्यू का इंप्लीमेंटेशन हीप्स का यूज करके होता है, बाइनरी हीप्स का, ठीक है, मिन और मैक्स हीप। तो और प्रायोरिटी क्यूज हमारे कहाँ पे यूज आते हैं, ग्राफ्स की इन एल्गोरिथम्स में। सो दैट्स वाई हीप्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं अगर हमें ग्राफ्स की एल्गोरिथम्स बनानी है, ठीक है। देन प्रायोरिटी क्यूज कैन बी इफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बाइनरी क्यूज। तो सेकंड यूज हमारा कहाँ है कि बाइनरी क्यूज को रिप्रेजेंट करने में या इम्प्लीमेंट करने में बाइनरी हीप्स का यूज आता है प्रायोरिटी क्यूज में, ठीक है। मिन हीप, अगर मिन हीप प्रायोरिटी क्यू बनाना है तो हमें सिंटेक्स पता है STL का, और अगर मैक्स हीप बनाना है तो वो तो सिंपली डिफॉल्ट सिंटेक्स है, ठीक है। देन हीप डेटा स्ट्रक्चर इज जनरली यूज इन हीप सॉर्ट। तो ऑब्वियसली हीप सॉर्ट जब हमने पढ़ा था तो देखा था कैसे हम हीपीफाई करते हैं। हीपीफाई में हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे बाइनरी हीप का जो भी मैक्सिमम होता है उसको हम टॉप में ले आते हैं, रूट पे मैक्स हीप बनाते हैं और फिर जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको लास्ट में प्लेस कर देते हैं अपनी सॉर्टेड एरे में, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं बाइनरी हीप की, ठीक है।
अब लास्ट थिंग आई तुम्हारी देखने वाली चीज जो कि हम और देख सकते हैं इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी, तो जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टिल मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूं कि हीप सॉर्ट अगर आपने पढ़ी होगी तो हीप सॉर्ट में कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, हमें पूरी सपोज n साइज की एरे को अगर सॉर्ट करना है तो हम क्या करते थे, कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता थी n log n, ठीक है। तो हीपीफाई करने की किसी भी बाइनरी, कोई भी बाइनरी हीप हमें गिवन है, ठीक है, और या फिर हमें कोई एरे गिवन है, ठीक, और उसको हमें हीपीफाई करना है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती थी, log n, ठीक है। और हमें n एलिमेंट्स को सॉर्ट करना था टोटल, तो हमें n टाइम्स हीपीफाई करना पड़ता था, तो दैट्स वाई टोटल कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n, ठीक है। अगर आपको फिर से कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा डीप डाइव करना है तो यू कैन जस्ट go to heap sort video and you can easily get the time complexity of heap data structure, ठीक है। So thank you guys for watching this video. If you have any doubt so you can just ask in comments, okay. And second thing, if you haven't visited this Newton School website, just go to newtonschool.co, check their pay after placement program and launchpad initiative. And also if you want to check their MS degree program, just go to the link in description, that is bit.ly hitesh15, and you will get everything about it. Subscribe this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, if you haven't done yet, and bookmark this playlist. Thank you guys for watching.